Hello students, today let us begin with the last portion of this lesson, that is life processes, and we will be dealing with the control and coordination in animals. Students, we all know that different types of processes are going on in the human body, and all these processes need to be efficiently and effectively controlled and coordinated. In the last part, we have studied the definition of control, that is systematic regulation of various processes, whereas coordination is bringing about different processes in proper sequence. तो ये हम लोगों ने already discuss कर लिया था. Now let us begin with the control and coordination in animals. Here we will study about the control and coordination in human beings. Now humans, they can respond to the changes in their surrounding due to two types of control, that is nervous control and chemical control. Now with the help of this nervous control, it plays the important role of empowering the body cells with an ability to respond to the impulses. Means जब भी हमारे सराउंडिंग में कुछ एक्शंस होती है तो हमारी बॉडी उसके लिए किस तरह से एक्ट करती है, तो हमारी बॉडी को एम्पावर करने का काम नर्वस कंट्रोल करता है. ये किस पे डिपेंड करेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अगर वो यूनिसेल्युलर एनिमल है तो उसके पास इतना डेवलप नर्वस सिस्टम नहीं होगा कि जो इम्पल्सेस प्रोड्यूस करेगा या उसको रिस्पॉन्स देगा. लेकिन अगर वो हम इंसानों के जैसा मल्टी सेलुलर एनिमल रहेगा तो इट विल हैव अ नर्वस सिस्टम टू रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई. सो this control and coordination is brought about by the special type of cells called nerve cells or neurons, and these nervous control, it consists of the brain, spinal cord and nerves. The second type जो है control and coordination, it can also be brought about with the help of chemical control. Now this chemical control is brought about by the chemical substances called hormones. हम सब ने हॉर्मोन्स ये वर्ड सुना हुआ है. ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करते रहती है. इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं because they are directly released in the bloodstream and then it gets circulated in whole body. इनकी जो एक्शंस होती है वो स्लो होती है बट लॉन्ग लास्टिंग होती है. तो इस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग्स में दो मेथड्स से होता है, दैट इज़ नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल. नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द नर्वस कंट्रोल. अब देखिए, ये जो नर्वस कंट्रोल होता है ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और ये न्यूरॉन्स इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. So these neurons, they are nothing but the structural and functional unit of the nervous system. These nerve cells, they are the largest cell in the human body and it may measure up to few meters in length. These nerve cells, they have the ability to generate and conduct electrochemical impulses. पूरे बॉडी में फैले हुए रहते हैं ये न्यूरॉन्स और इस तरह से ये इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस देते हैं कि जिससे हमारा बॉडी पूरी तरह से रिएक्ट करता है और इम्पल्सेस प्रोड्यूस्ड करते हैं. ठीक है. नाउ द सेल दैट सपोर्ट्स द नर्व सेल एंड हेल्प in their functioning are known as neuroglia. So nerve cell and neuroglial cell together they form the nerves. Now how these electrochemical impulses are produced? So let us see. Now students, you can see here the dendrites are produced. All the informations about our surroundings, they are collected by the end of the dendrites. So here dendrites are present and they are responsible for producing the impulses from one cell to another cell. Now the chemical process begin at those ends and electrical impulses are generated
which are conducted from dendrites to the cell body. यहाँ cell body में nerve impulses आते हैं. Now these impulses from the cell body, they are again electrical impulses are generated and from the cell body to the axon and from axon to its terminal. Now these impulses are transferred from this nerve cell to the next nerve cell. Now whatever impulses that reach the terminal of the axon, it stimulates this axon terminal to produce the chemicals. These produced chemicals, they are passed through the minute spaces called the synapses, and between the two neurons these impulses are passed on. In this way impulses are conducted in the body, and these impulses are finally conveyed by the nerve cell to the muscle cells or to the glands. So इस तरह से the messages are passed on from dendrites to cell body. From cell body it transports to the axon. From axon it transfers to the axon terminal, and from axon terminal with the help of such synapses it is transferred to the glands or the muscle cells. तो इस तरह से हमारी बॉडी नर्व सेल्स इम्पल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है. जैसे ही नर्व सेल्स इम्पल्स हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ द मसल सेल्स इज ब्रिंग अबाउट बाय दिस एक्टिविटी. When the cell contracts to change their shape, movement occurs at the cellular level. Muscle cells, they have the ability to change their shape due to the special type of proteins. इस तरह से हमारे बॉडी में ब्रेन से ऑर्गन तक, ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेजेस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. So this is the working of the nerve cell. Now let us begin with the next part. Depending upon the neurons which are present, we have different types of nerve cells. The first is the sensory neuron. This sensory neuron, it conducts the impulses from sensory organ to the brain and spinal cord. जब भी हमें कुछ मैसेजेस सेंसरी ऑर्गन से, जैसे आपको सपोज एक कांटा चुभ गया है तो हमारा सेंसरी ऑर्गन हमारा स्किन हो गया, फिंगर हो गया, उसके मैसेजेस जो ब्रेन तक पहुंचाने के हैं ये काम करेगा सेंसरी न्यूरॉन. नाउ द सेकेंड टाइप इज द मोटर न्यूरॉन. means it conducts the impulses from brain or spinal cord to the effector organ like the muscles or the gland. जैसे ही हमारे ब्रेन के पास मैसेजेस पहुंचते हैं कि ये हमें कांटा चुभा हुआ है, तुरंत हमारा ब्रेन वहाँ से मैसेजेस ट्रांसफर करेगा और हम हाथ अपना पीछे हटाते हैं. तो ये जो मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन. एंड देन there is a third type of neuron which is known as association neuron. So it is having the function of integration in the nervous system. Messages सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन और वापस लाते समय ये एसोसिएशन न्यूरॉन का रोल होता है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स एंड देयर फंक्शंस. नाउ लेट अस बिगिन विद द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. We can broadly classify our human nervous system into three parts. The first is the central nervous system. This central nervous system is consisting of the brain and the spinal cord. Now you can see here the brain and the spinal cords are present and it regulates all the activities of the cell. तो इस तरह से ये जो सेल होते, ये जो नर्वस सिस्टम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारी बॉडी के फुल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. द सेकेंड टाइप इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम and it consists of the nerves which are originating from central nervous system to all body parts. तो हमारे ब्रेन से जो भी नर्व्स निकलती है उनको, या हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है उनको सारे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने का काम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है. देन कम्स द थर्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम.
This nervous system consists of the nerves in the involuntary organs. Involuntary organs, you all have studied it in the lower classes that these are the organs on which we cannot have the control. यानी जब से हमारा बर्थ हुआ है तब से ये ऑर्गन्स अपना फंक्शन करते रहते हैं और हमारा उस पर कोई विल या ऑर्डर या कमांड उस पर काम नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल लंग्स, हार्ट, किडनी, स्टमक, लीवर, these are all the involuntary organs. तो जितनी नर्व्स यहाँ प्रेजेंट है इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स में, उन नर्व्स को हम या उस सिस्टम को हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. सो दिस इज़ द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ आवर ह्यूमन नर्वस सिस्टम. लेट अस बिगिन विथ ईच नर्वस सिस्टम इन डिटेल. So starting with the central nervous system, we have studied. The central nervous system consists of the brain and the spinal cord. Now this brain is extremely delicate and it is highly evolved. This brain is the main controlling part of the nervous system and it is safely located in the cranium cavity. So brain is protected by the skull or the cranium, whereas the spinal cord is protected by the vertebral column or backbone. Now you have seen the brain. So there is a gap between the brain and the bony structure. This gap is covered with the protective membrane which is known as meninges. And you might have seen various cavities and the folds are present in the part of the brain. They are known as ventricles, whereas the cavity of the long tubular spinal cord is known as the central canal. Now all these three things, means the protective membrane, that is meninges, ventricles and central canal, they are all filled with the very special type of fluid which is known as cerebrospinal fluid. This cerebrospinal fluid, it keeps our central nervous system well nourished and it also has the important function of protecting it from absorbing the mechanical shocks. अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसके सर को तो नहीं लगा हुआ है. तो अगर उसके सर को लगा हुआ है मीन्स उसके ब्रेन को अगर हर्ट हुआ है तो इट विल बी अ सीरियस मैटर. Otherwise he can be saved. So in this way this cerebrospinal fluid, it is having the important function of absorbing the mechanical shocks. So now let us study in detail about this brain. Now this brain, the adult human beings, they weigh the brain about 1300 to 1400 grams, and this brain, it consists of 100 billion neurons. So you can imagine how important it is, है ना. Now this brain, it can be divided into three parts, that is forebrain, midbrain and hindbrain. फोरब्रेन यानी हमारा जो माथा होता है वो फोरब्रेन का कंसिस्ट करता है and it is known as the cerebrum. This forebrain is said to be the main thinking part of the brain. This is the largest part of our brain and it consists of the two cerebral hemispheres जो मैं आगे आपको दिखाने ही वाली हूँ. Now these hemispheres, they are also joined with each other with the help of the nerve tracts. अब it is also known as the large brain because this cerebrum, it occupies 2/3 of the brain. Now its surfaces has the deep irregular ridges. Here you can see how much deep ridges and grooves it is having. These are known as convolutions. This convolution, it increases the surface area of the cerebrum and therefore a large number of nerve cells can be accommodated. That's why it is having maximum number of nerve cells, क्योंकि इसे पूरे बॉडी पे कमांड करना है, पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखना है. Then comes the second type, that is the, यहाँ पे अगर हम डिटेल में जाते हैं तो सेरेबेलम. सेरेबेलम, इट इज़ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन. आपको यहाँ पे सेरेबेलम दिख रहा है. इट इज़ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द क्रेनियल कैविटी. क्रेनियम के जस्ट बैक में, गर्दन के पास में, और उसके भी सरफेस में आपको शैलो ग्रूव्स दिखेंगे इंस्टेड ऑफ डीप कॉन्वोल्यूशंस. तो आपको यहाँ ग्रूव्स दिख रहे हैं ग्रे कलर का. देखिए यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है, इट इज़ द सेरेबेलम
part. Then comes the medulla oblongata. This medulla oblongata, it is the हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है. इट इज़ द हाइंड मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. यहाँ रेड डॉट दिख रहा है आपको. दीज आर then there are various regular structures called the pyramids on the upper side of the medulla oblongata. This medulla oblongata, it continues down the spinal cord. तो यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड से पास होता हुआ फिर ये नीचे की तरफ मूव्ड होता है. सो दीज आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. And forebrain is said to be the main thinking part, whereas the midbrain, it controls the involuntary actions. Involuntary actions यानी जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे हार्ट बीट है या फिर ब्रीदिंग है या स्नीजिंग है या कफिंग है. इन सारे एक्शंस को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है. और हाइंड ब्रेन क्या करता है, तो वो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स और बैलेंसिंग का काम. हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, डांस करते हैं, सोते हैं, जहाँ पे भी हमारा बॉडी का बैलेंसिंग का रोल आया है वहाँ पे ये हाइंड ब्रेन अपना काम करते रहते हैं. सो दिस इज़ द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन एंड इट्स वेरियस पार्ट्स. Now students, there is one more interesting thing about the brain. The left side of our brain controls the right side of our body and vice versa, means right side of our brain controls the left side of the body. तो इस तरह से आप देखोगे कि left side of our brain, it controls our speech, conversation, writing, लॉजिकल थिंकिंग. ये सब कंट्रोल करने का काम हमारा लेफ़्ट ब्रेन करता है. तो हमारा जो भी है इंटेलिजेंस है, हम कितना अच्छा बात कर सकते हैं, कितना अच्छा लिख सकते हैं, हमारा स्पीच कैसा है, ये सब कंट्रोल करने का काम लेफ़्ट ब्रेन करता है. तो राइट ब्रेन क्या करता है, हमारी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ को कंट्रोल करता है. सो होलिस्टिक थिंकिंग्स, इंट्यूशंस, क्रिएटिविटी, आर्ट्स, म्यूज़िक्स, ये सब कंट्रोल करने का काम हमारा राइट ब्रेन करता है. सो दिस इज़ हाउ द वर्किंग ऑफ द ब्रेन टेक्स प्लेस. Now this diagram, it shows us the position of the brain and the spinal cord. How the brain and the spinal cord, they are connected with each other. So spinal cord, it is a part of the central nervous system and it is held within the vertebral column. आप यहाँ देख सकते हो वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हुआ है, उसके थोड़ी देर के बाद यानी ये जो पैच आपको दिख रहा है ये हमारा गर्दन का पैच है. ये वाला पार्ट जो रेड लाइट से आपको दिख रहा है, दिस इज़ द पैच ऑफ अवर नेक. और जस्ट नेक के नीचे में यहाँ पे आपको एक वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड जो है यहाँ दिखता है, जहाँ पे सारी नर्व्स जो ब्रेन से आती है यहाँ जमा होती है और फिर पूरे बॉडी पार्ट में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू ये फैलता है. नाउ देयर इज़ अ it is light, this vertebral column is slightly thick but gradually it tapers towards the end. तो जैसे जैसे आप देखोगे यहाँ थोड़ा सा थिक है वर्टिब्रल कॉलम, आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो तो ये जो बैकबोन है धीरे धीरे थिन होते जाती है. एंड देयर इज़ अ थ्रेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर एट इट्स एंड विच इज़ नोन एज फाइलम टर्मिनल. तो ये टर्मिनल मीन्स द इट इज़ द end part of this vertebral column. So this is how the spinal cord and brain, they are attached with each other. Now this is the position. Now let us go for the function of various parts of the brain. So here you can see the different regions of the brains are shown here. Cerebrum, जो कि वॉलेंटरी मूवमेंट, कॉन्सेंट्रेशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. तो सेरेबेलम वॉलेंटरी मूवमेंट्स और बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है. मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस जैसे हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, कफिंग, सलाइवेशन, ये भी हमारे जो भी हमारी एक्शंस है इनवॉलेंटरी एक्शंस, इनको मेडुला ऑब्लोंगेटा ये पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है. नाउ द लास्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड. सो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, इम्पल्सेस कंडक्ट करता है फ्रॉम स्किन टू ब्रेन, फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स एंड द
Next one is it acts as the center of coordination of reflex action. This reflex action is very important process. I will discuss with you later on after few slides. So this is how the brain and different regions of the brain functions. Now this was about the central nervous system. Now let us consider the peripheral nervous system. So peripheral nervous system, it consists of the nerves which originate from the central nervous system. हमने देखा कि central nervous system में brain और spinal cord होता है ना. तो these nerves they connect the central nervous system with all the part of the body. This peripheral nervous system, they are of two types. So first is the cranial nerves. These are the nerves which are originating from the brain and they are so called as the cranial nerves because cranium related with the brain. Now these nerves they are associated with various parts in the head, thorax and abdomen. तो हमारा सर, हमारी गर्दन और पेट का पार्ट इसमें cranial nerves present होती है. टोटल हमारी बॉडी में 12 pairs of cranial nerves are present. The second type of the peripheral nervous system is the spinal nerve. From the name only you can get the guessing that these are the nerves originating from the spinal cord. So spinal है means spinal cord से originate हो रहा है. They are associated with the arms. हमारे हाथ, पैर, skin और बाकी के body parts में ये spinal nerves present होते हैं. And there are 31 pairs of spinal nerves which are present in our body. So students, this is about the peripheral nervous system. So second type of human nervous system we have discussed. Now comes the third type of, that is the autonomic nervous system. Now this autonomous nervous system, it consists of the nerves of the involuntary organs like the heart, lungs, stomach, kidney, liver and so on. So it is not under the control of our will. So these are the various types of nervous system which are included in the human nervous system. So human nervous system, again I will tell you, it consists of the three parts: central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system. Now students, let us consider the important part. When we were discussing about the function of the spinal cord, तो मैंने वहाँ बताया था it functions as the center of coordination of reflex action. यानी क्या? तो देखिए, कभी कभी हमें कुछ ऐसे इमीडिएट एक्शन लेनी पड़ती है और ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस होते हैं. जो भी हमारे सराउंडिंग में हैपनिंग्स हो रही है, हम उसको बिना सोचे समझे फट से रिएक्ट करते हैं. तो ऐसी एक्शंस को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन. सो डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज an immediate and involuntary response given to a stimuli from the environment. Suppose आपको अचानक से एक कांटा चुभ गया है तो आप जोर से चिल्लाते हो, है ना, और पैर ऊपर कर लेते हैं. तो ये सडन एक्शन है, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है, हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है. अब यहाँ जो डायग्राम दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले पोजीशन पे क्या हो रहा है, एंड इमीडिएट एंड स्टिम्युलस इज रिसीव्ड. यानी जैसे ही एक फिंगर आपका कैंडल के ऊपर जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, आपका हाथ गर्म हो रहा है. सो स्टिम्युलस इज रिसीव्ड. सेकेंड पोजीशन में क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ आपके हाथ को झटका लग रहा है, फट से आपका हाथ पीछे हो जाता है. सो यू आर गिविंग द रिस्पॉन्स, दैट इज हैंड इज विड्रॉन. सो हियर द नर्व इम्पल्सेस आर कैरिंग द मैसेजेस. उसके बाद आपको दिख रहा है थर्ड नंबर पे क्या हो रहा है, तो थर्ड नंबर पे सेंसरी न्यूरॉन नर्व्स इम्पल्सेस को कैरी कर रहा है और ये जा रही है स्पाइनल कॉर्ड में. फोर्थ पोजीशन पे आपको दिखाया हुआ है एसोसिएशन न्यूरॉन, जो कि सेंसरी न्यूरॉन है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा. स्पाइनल कॉर्ड इट एक्ट्स एज द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन. अब यहाँ पे नॉर्मल रूल क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाएगा ब्रेन में,
ब्रेन से वापस आएगा स्पाइनल कॉर्ड में एंड देन इट विल बी पास ऑन टू द मोटर न्यूरॉन. बट हियर एज इट इज़ द immediate action, so here the spinal cord will act as the center and it will receive the message of the sensory neuron, and with the help of association neuron it will give commands टू द मोटर न्यूरॉन. तो यहाँ पे जो 6 नंबर पे आपको दिख रहा है ये है मोटर न्यूरॉन जो हमारे इसको रिस्पॉन्स दे रहा है इम्पल्सेस को. और फिर 7th नंबर पे जो आपको दिख रहा है वो है हमारी मसल्स. तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कमांड दे रहा है हमारे हाथों की मसल्स को कि यस तुम्हें हाथों को विड्रॉ करना है. सो इंस्टेंटली द हैंड्स विल बी विड्रॉन फ्रॉम द कैंडल. तो ये कैसा हो गया, इमीडिएट एक्शन हुआ. हमको जैसे ही झटका लगता है तो हम लोगों ने फट से हाथ पीछे कर दिया है. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. ऐसे कई रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे लाइफ में होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ जैसे दिखाया है, अचानक हमने कोई गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया है तो हम उस बर्तन को छोड़ देते हैं. वैसे ही ब्लिंकिंग ऑफ आई, आँखों के सामने अगर छोटा सा कीड़ा आता है तो हम फट से आँख ब्लिंक कर देते हैं. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. अगर हम बहुत बाहर की धूप से कमरे के अंदर आते हैं तो हमारी आंखें खुली हो जाती है यानी थोड़ी एक्सपैंड होती है. सो डायलेशन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. अगर हम घर से बाहर धूप में जा रहे हैं तो हमारी आंखें थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है. सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. वैसे ही अगर हमारी कोई बहुत फेवरेट चीज़ घर पे बन रही है तो हमारे मुंह में पानी आता है. सो दिस सलाइवेशन इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. इस तरह से स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल ट्रेन जो होना है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और फिर हम ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं मैसेज, तो ये वैसे ना होते हुए डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से ही मैसेज कन्वे होता है और मोटर न्यूरॉन उस सेंसरी ऑर्गन्स तक मैसेज कन्वे करते हैं. सो दिस एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. उसके बाद है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अभी तक हमने नर्वस कंट्रोल पढ़ा और उसके डिटेल्स पढ़े. नाउ द सेकेंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ सर्टन केमिकल्स कॉल्ड एज हॉर्मोन्स. अब ये हॉर्मोन्स जो है मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि दीज आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. दीज ग्लैंड्स आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स and these glands they do not have any arrangement of their own to either store or carry their secretion. Hence as soon as the hormones are released they are directly released in the blood circulation. और इसीलिए स्पेसिफिक लोकेशंस इनकी प्रेजेंट है और उनके सिक्रीशंस जो है वो पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड के थ्रू पहुँचाए जाते हैं. So endocrine glands along with the nervous system are responsible for the control and coordination of the body. अब देखिए यहाँ आपको बहुत सारी endocrine glands की पोजीशन दिखाई हुई है. फर्स्ट वाला जो है वो है hypothalamus. So this hypothalamus it secretes the hormones which control the activity of the secretory cells of pituitary gland. This pituitary gland is also known as the master gland क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे बेस पे होती है ब्रेन के, ये हमारे ग्रोथ ऑफ बोन्स को स्टिमुलेट करता है, हमारे एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और हमारी बाकी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम, वाटर लेवल भी हमारे बॉडी का रेगुलेट करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड्स करते हैं. फिर है नेक्स्ट हमारे थायराइड ग्लैंड्स. ये थायराइड ग्लैंड्स जो है दे आर ऑन द ट्रकिया रीजन ऑफ द नेक. गर्दन के पास में जो ट्रकिया है जहाँ से हमारा फेफड़ा शुरू होता है वहाँ पे ये हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन नाम के 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं. ये भी हमारी बॉडी की ग्रोथ को और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और कैल्सिटोनिन जो है वो हमारे कैल्शियम लेवल ब्लड को कंट्रोल करता है.
उसके बाद आपको दिख रहे हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स ये पैराथ्रोमोन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है और हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करता है। उसके बाद आपको दिख रहा है थाइमस। सो दिस थाइमस इट इज़ प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी और द केज, जो हार्ट के पास होता है, और ये थाइमोसिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है जो हमको इम्यूनिटी के सेल्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। फ़िलहाल में हम लोग इम्यूनिटी के बारे में बहुत बात करते हैं, तो ये इम्यूनिटी को डेवलप करना, कंट्रोल करना, ये थाइमस ग्लैंड्स करते हैं। उसके बाद आते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर एंड ऑफ ईच किडनी, और ये एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो हमारे बिहेवियर, हमारे इमोशनल सिचुएशंस, कभी हमें बहुत खुशी होती है, कभी हमें बहुत बुरा लगता है, कभी बहुत आप हैप्पीनेस प्रोड्यूस, तो ये जो भी हमारी या क्राइसिस होती है, आपने देखा होगा इंसान अगर बहुत डिप्रेशन में चला जाता है तो वो बहुत गलत स्टेप उठाता है, बहुत डरता है कभी, तो ये जो भी हमारे बिहेवियर होते हैं ना, ये सब ये एड्रेनल ग्लैंड्स की वजह से होते हैं। इवन हमारा हार्ट, उसका स्टिमुलेशन, उसके बाद में हमारी कंडक्टिंग टिश्यूज़, हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस, इन सबको कंट्रोल करने का काम ये एड्रेनल ग्लैंड करता है। उसके बाद आपको ओवरीज और टेस्टिस दिख रही है, तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस में हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर ओवरी है तो ओस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं वुमेंस में, तो टेस्टिस जो होता है ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करता है मेन में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय द endocrine glands, and with the help of both, that is nervous control and chemical control, our body controls and coordinates very well. So students, these are all the functions and their positions and their role. ठीक है, तो कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है और उनके हार्मोन्स कौन से सीक्रेट हो रहे हैं और उनकी फंक्शंस क्या है, ये चार्ट आपको पूरा डिटेल उसकी स्टडी देता है। यू कैन गो थ्रू दिस चार्ट एंड you can very well understood the concept of chemical control. So students, in this way we have come to the end of this lesson, that is life processes. तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सको। सो दिस वाज लेसन नंबर 15, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, जिसमें हमने एक्सक्रीशन पढ़ा और जिसमें हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ा है। आई होप you all have understood it well, and if you have any problem you can ask me, and all the best to you. So goodbye.